Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 4, Subject Mathematics, Lesson 7, Fraction, Part 1. Good morning, my dear student. How are you all? Hope you all are doing well at home. Yes? Good. So, my dear student, are you ready for your study? Yes? Good. So, first of all, take out your book, notebook and pencil. Okay. And my dear student, do you know? Today we will start new chapter, chapter 7. And that is fraction. Oh, to know what is fraction? आप जानना चाहते हैं? Yes, good. So my dear student, here is when a whole is divided into parts, equal parts or parts of the whole is called fraction. Means जब हम किसी भी जो होल नंबर होता है उसके पार्ट्स करते हैं या इक्वल पार्ट्स करते हैं वही फ्रैक्शन नंबर्स कहलाते हैं. लाइक 1/3, 1/2, 1/5 like this. Okay, जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं written as 1/2, 1/3. So the upper number, जो अपर नंबर होता है is called न्यूमरेटर. एंड बॉटम में जो नंबर होता है वो कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर. ओके, सो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है पार्ट और पार्ट्स एंड डिनोमिनेटर होता है होल नंबर्स, यानी जो टोटल नंबर्स होता है. एग्जांपल 2/5, 2/5. So we write as 2/5 means total is 5 and 2 is its part. Okay, so my dear student, upper part of a fraction called numerator and जो bottom में जो part होता है वो कहलाता है denominator. Okay, so बेटे इस example what is this? This is circle. Okay, and this is whole, क्योंकि आपका ये complete circle है. Now we divide into two equal parts. So now it is 1/2. Okay, because देखिए ये whole था और मैंने क्या किया, इसका equal part कर दिए. Now it is 1/2 because total part कितने हैं? 2 part. Okay, और मैंने equal part में इसको convert कर दिया है. Now look at here. So now it is total part कितने हैं? How many total parts? Yes, 4. So we write 4 in bottom, and if I shaded, look at here, I shaded one part. Okay, so total part is 4. So we write bottom and shaded part. So how many? 1. So we write 1 on the top. Okay, is it clear? So my dear student, आपको ये ध्यान रखना है जो used part होता है वो हम न्यूमरेटर की जगह रखते हैं. Okay, here is 3/5. So as you know, 3 is numerator and 5 is denominator. Okay, so my dear student, 8 part. So we write here 8. Here is 3/8 means total part कितने हैं यहाँ? 8 and 3 हमें यूज करना है. Then we shaded so my dear student, here we used 3 part. Okay, and total is 8. So we write 3/8. Clear? Here is types of fraction. Okay, so the first type of like fraction, and like fraction क्या होते हैं? Where same denominator. Like fraction have
same denominator like 1/5, 3/5, 4/5 means जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट होता है बट उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है. सो आपको क्लियर हो गया. लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके. Unlike fraction have different denominator like 2/4, 3/5, 6/5 means different. जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ओके. यानी कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट होते हैं एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होते हैं. एंड यूनिट फ्रैक्शन हैव वन न्यूमरेटर वन एज अ न्यूमरेटर मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होंगे बट न्यूमरेटर ओनली वन ही होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. ओके. एंड प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो वी कॉल दैट proper fraction like 2/5, 3/7, 5/8 means when numerator is less than denominator, so we call that proper fraction. Okay. And improper fraction, so beta improper fraction just opposite होता है proper fraction की. means यहाँ जो numerator होता है वो denominator से बड़ा होता है. means numerator is greater than denominator like 8/5, 7/3. सो आपको ये क्लियर हो गया. यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ओके. एंड नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं होल नंबर्स में. लाइक fraction that represent the same part of the whole are called equivalent fraction. means वो fraction जो whole number का जो भी whole number है same part represent करते हैं वो equivalent fraction कहलाते हैं. like 3/6 and 4/8. so बेटा first of all इसको हम check करते हैं ये equivalent है या नहीं. so उसके लिए हम इसको reduce कर सकते हैं. सो हियर इज लाइक देखिए मैंने इसको 3 से रिड्यूस कर 3 से. सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. एंड नाउ वी रिड्यूस इसको हम 2 से करते हैं. सो 8. नाउ वंस अगेन 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो लुक एट हियर इज the same fraction है. so it means 3/6 and 4/8 is a equivalent fraction. और बेटा आप इसको देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे like 3/6 and 4/8. देखिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं सो आप यहाँ देखिए. ओके. 8 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 6 4 जा 24. so both are equal means that is equivalent fraction. आपको क्लियर हो गया. यस. देखिए ये बहुत इजी वे है, आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. सो आपको ये क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं. व्हेन द सेम पार्ट ऑफ द होल, जब सेम पार्ट आता है होल का वही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. ओके. एंड आपके पास इजी वे है, आप ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, हियर इज राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हाउ वी राइट सेम फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो लुक एट here is for example here is 3/5. so first we multiplied by 2. okay. so look at here 2 3s are 6 and 2 5s are 10. now next we multiplied by 3. so 3 3s are 9 and 3 5s are 15. now next is 4 multiplied by 4. so 4 3s are 12 and 4 5s are 20. so beta equivalent fraction are 6/10,
Yes, 9/15 and 12/20. देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज आप, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि किसी भी नंबर्स का जो भी आपको गिवन फ्रैक्शन होगा आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4. सो हियर इज आपको 3 टाइम पूछा गया है, राइट, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप जितने भी टाइम आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, आप उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ओके, जैसे यहाँ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए बोला गया था. सो देखिए गिवन डिजिट को फर्स्ट भी मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. सो these are equivalent fraction of 3/5. Okay, now next method, check equivalent. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. Here is 3/5. So we cross multiply the digit. So 8 3s are 24 and 5 4s are 20. So बेटा आपने यहाँ देखा are not equivalent fraction because here is 24 and 20. So these are not equivalent fraction, means 3/5 and 4/8 is not equivalent fraction. Okay, and now next. So first of all we cross multiplied. So 3 4s are 12 and 6 2s are 12. So आप देखिए both are the equal number, means same number. So it is equivalent fraction. 4/6 and 2/3 is equivalent fraction. So आपको clear हो गया? Yes. Now next. So my dear student, here is reduce the fraction. अब देखिए हम किसी डिजिट को, किसी फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, मीन्स लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं. देखिए, so here is 12/15. So first of all we write the factors of 12. Dear student, first of all we write the factors of 12. So factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12. Now we write the factors of 15. So factors of 15 are 1 3 5 and 15. So HCF means highest common factor क्या है, that is 3. Okay, so HCF 3. So बेटा means ये जो नंबर है हमारा 12/15 we divided by 3. Okay, so 3 4s are 12 and 3 5s are 15. So the answer is 4/5. एंड बेटा ये लोएस्ट नंबर है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो आपको क्लियर हो गया. 12/15 को रिड्यूस करके क्या नंबर आया हमारा, 4/5. सो बहुत आसान है. यस, और आप सबसे पहले उसके फैक्टर्स जो भी आपके गिवन नंबर्स होंगे, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिखेंगे. HCF और जो HCF नंबर होगा उसी से आप डिवाइड करेंगे और आपका नंबर रिड्यूस हो जाएगा. तो भी हम सम्स कर रहे हैं उसके लिए हमें टेबल्स की नीड है. सो लर्न टेबल. यस, आपको टेबल्स आनी चाहिए ना. आपको टेबल्स लर्न होंगी तो आप बहुत इजीली बस जस्ट नंबर को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा और जिसको आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं. और बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस नंबर से भी आप डिवाइड करेंगे उस नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने न्यूमरेटर किसी और नंबर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर किसी और नंबर से. ऐसे हम नहीं करते हैं. आपको सेम नंबर ही लेना है जिससे आप डिवाइड करें. सम एग्जाम्पल्स कि हमें ये क्लियर करने के लिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5. So it is proper fraction, proper, because look at here, numerator is less than denominator. Denominator हमारा 5 है and numerator 4 है, so it is proper fraction, proper fraction. And here is
8/6. So it is improper because numerator is greater than denominator. So it is improper fraction. Okay. So बेटा आपको ये भी क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, गुड. सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. सो आप देखिए बेटे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया. यस, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. नाउ वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो हियर इज 9/7. ओके, सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटे. मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे. ओके, सो 7 से 9 को डिवाइड किया, देन 7 1 जा 7 एंड 9 - 7 is 2. सो बेटा आपको ये ध्यान रखना है जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप यहाँ लिखेंगे यानी टॉप पर लिखेंगे, एंड जो आपका क्वोशिएंट है वो आप यहाँ लिखेंगे, एंड डिवाइजर को आप बॉटम में लिखेंगे. ओके, एंड इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो देखिए, बिकॉज आप जानते हैं जो नीचे नंबर होता है हमारा, यस डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से हम होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक आप यहाँ देखिए 7 1 जा, वन टाइम आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 1 लिखा हुआ है. सो 7 1 जा 7, एंड जो रिमाइंडर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं. सो 7 1 जा 7 मीन्स आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए 7 × 1 + 2 मीन्स इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 करेंगे. सो आंसर इज 7 1 जा 7 और 2 9. सो देखिए सेम आ गया आपका 9/7. यस, सो बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन अपॉन 4. सो बेटा 18 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 4 जा 16. यस, सो रिमाइंडर कितना बचा? 2. सो वी राइट हियर 2 at the top. So we write 2 on the top, 4 here and 4 down. So the answer is 4 whole 2/4. बेटे इसको हम नंबर को रिड्यूस भी कर सकते हैं, आपको जैसे अभी बताया. इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए. सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, एंड बेटा जो होल नंबर है वो सेम रहता है. So now the answer is 4 whole 1/2. क्लियर हो गया बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, देखिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बना पाएंगे, बिकॉज आप छोटी डिजिट से ही बड़ी डिजिट को डिवाइड करेंगे. ओके, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आप टॉप पर लिखेंगे, जो आपका क्वोशिएंट है वो होल नंबर होता है, एंड डिवाइजर आपका यस डिनोमिनेटर होता है. ओके, सो आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं. यस, ओके. नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर नंबर बनाएंगे. सो हियर इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाउ वी मेक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो बेटा आपको ये जैसे कि मैंने आपको बताया 7, इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, हियर इज 2. सो 7 × 2 + 2. सो देखिए 7 2 जा 14 और 2 7 जा 14 इज द सेम थिंग, +2. सो आंसर इज 14 + 2 इज 16. ओके, सो 16/7. बेटे आपका ये जो टोटल नंबर होता है वो आप टॉप पर लिखेंगे, एंड बॉटम में आप क्या लिखेंगे? बॉटम में जो नंबर डिनोमिनेटर होता है सेम आप वही लिखेंगे. सो द आंसर इज 16/7. एक और एग्जांपल देखिए, हियर इज 3 + 3. सो 5 3s are 15. 15 + 3 is 18. So the answer is 18/5. देखिए
5 3s are 15. 15 plus 3 is 18. So the answer is 18 upon 5. So आपको क्लियर हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. ओके, 1 to 4 do in your book and notebook. Yes, and if you have any confusion then ask me. We will do remain exercise in next classes. Okay, till then take care. Bye. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, complete video class work in your mathematics book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, bye-bye, take care, stay at home, stay safe, God bless you.